देखो मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्यों आज एब्सेंट थे, लेकिन अ, आज मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई है वो मैं आपको के सामने सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा कल की क्लास के लिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ, हमने अभी तक 2 यूनिट्स कर लिए हैं। Unit 1 we have done and Unit 2 also. Okay. In the second unit, that is the Constitution. The name of chapter is Constitution, and in this video we are going to study about kinds of Constitution, and in the kinds we can see the written, unwritten, rigid, and flexible. Each type we will discuss, and along with the types we will study about their merits and demerits too. So in this video we are going to see, and this video is totally dedicated those people who were uh, absent today. Okay. And many congratulations to Suri and Ida Mary, because वो दोनों बच्चियां आज आई थी, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया। ठीक है, और आज हम लोगों ने यूनिट 2 भी कवर किया। बट ठीक है, अब आप कहेंगे कि टीचर तो ऐसे वीडियो बना कर दे देंगे, लेकिन बेटा ये हर बार नहीं चलने वाला है ना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, देखिए मैं पता है 2 बच्चियां जो हैं फिलहाल वो क्लास नहीं आ रही, लेकिन मैं रेगुलरली मैं ट्राई करूंगा कि एक एक यूनिट पर मैं डेली एक एक वीडियोस बना के चलूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट डोंट वरी ना, मैं ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में यूज़ करूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट आई डू नॉट नो इंग्लिश। I am aware beta we are the student of St. Mary English Medium School, and we are having the ICSE board, but does not mean that I am going to promote to Hindi medium. Okay, so in the classroom now I am right now what I can see in my report in these 2 days, I am using 99% English, 99%. Okay, you can check it also. बट लेकिन चूंकि ये वीडियो है, इट इज माय चैनल एंड आई हैव सम लिबर्टी, सो I can use bilingual also. I can give some example. I can take some, example notes and all. Everything I can take, because ultimate goal is to clear the data. Okay. I always respect every language. So आप थोड़ा सा लिबरल रहिए, और मुझे ये भी पता है कि हल्की फुल्की हिंदी हम सबको आती है ना, and we must know also. So without wasting our time, let's see what is the chapter. Let me clear everything now. Okay, see, in this video, okay, हमको क्या करना है बेटा, हमको जो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है। पहले तो आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। जैसे ही आपके सामने ये चैप्टर आता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आता है, तो आपको क्या लगता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ना एक कोई बुक है। ठीक है, ये बुक है जहाँ पे खूब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। मीन्स देयर इज अ रूल बुक, वी कैन से द रूल बुक ऑल्सो। Constitution is a rule book. We can see over the regulations, we can see the rules is there, regulation is there, and for that reason, how our state is going to rule beta, how government has become, powerful to become powerful to rule over the country, because having the status that is mentioned in the constitution. Because if you do not have if you have not secured any majority, that is a decided number, then you will not supposed to in the form of government also. So the concern is beta, each and everything what is happening in our country, that is ruled by, okay, that is ruled by the constitution. Understand, that is ruled by the constitution. We have to understand the main reason is there. अब आपको लगेगा सर अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता चल गया, तो क्यों हमें जानना चाहिए, वाई वी शुड नो अबाउट देयर काइंड्स। बिकॉज बेटा in the world, okay, in the world there are huge kind of variety also there na. In the world we can see there is a different kind of government. When the governments, their diversification is there in the same of, means any kind of government we can see there is a unitary form of government. Another one we can see there is a federal form of government. So in the unitary form we can see there is a central government superpower, and here we can see their mutual government. Mutual government means we are talking about the central government and at the same time state government also. So in the world beta, if we talk about the world na, there is a huge possibility to have the mixture of constitution, forms of government. So it will very tough to understand which kind of things we are going to have. So understanding what I am trying to say, the constitution, technically it is possible that to have a liberty of constitution in the form of kinds.
So written, unwritten, rigid and flexible, these are the kinds of constitution we are going to study. तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? वो एक ऐसे रूल बुक है जिसके बारे में हमारे गवर्नमेंट को लेकर, सिटीजन्स को लेकर, रूल बुक को, हर चीज के बारे में, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उनके फॉर्म्स क्या होंगे, तौर तरीका क्या होगा, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हर चीज के बारे में बेटा सब कुछ कहाँ लिखा रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, आज की क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए में क्या है बेटा? यूएसए में दो तरीके की चीज, एक तो स्टेट है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 50, एंड सेकेंड इज बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट. In the central government means there is a mutual understanding. Okay, we are aware about the American Revolution also. Understand? In American Revolution, they were in the form of 13. Only the 13 states were there in the form of USA. USA का मतलब क्या होता है? United States of America means whole states of America they have united. Why? Because have the definite concern. Means what बेटा? जैसे कि 50 लोगों ने मिलकर अपना एक स्टेटस बनाया, अपना एक सिंबल बनाया, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने 50 स्टेट्स हैं उन सभी का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, उन सभी का अपना एक बॉन्ड है. बॉन्ड किसके साथ है? बॉन्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब एक बात बताओ कि अगर बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके पास में क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा. लेट मी चेंज द पेन. कहीं ना कहीं उनके पास क्या होगा बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा. अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी वजह से क्या होगा? उनकी हर चीज किसमें होगी? रिटन फॉर्म में होगी. क्यों? क्योंकि अगर एक बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी है जिसके दो ऑर्गन्स हैं, है ना, जिसके दो ऑर्गन्स हैं, तो अगर उस बॉडी के दो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन ए एंड ऑर्गन बी, अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, सपोज इफ इट एट एनी टाइम इट कम्स बिफोर द us and any conflict, it will be very horrible to understand what is the problem and which kind of solution we are going to solve. The things is there beta, we cannot be we cannot give some solution if we do not understand about the problem. And if the things are written already, it will be very easy to find the problem, and then accordingly the situation and need of society and need of the institution, we can get the solution also. So the first reason is to be written. What I had told, the first reason is to be written. That is why in every, I'm not talking about everyone beta, mutually and majorly what happens if you talk about the federal government, there is a best example is beta USA. Married Trump. Okay, don't call Donald Trump. Who is a married Trump? Maddie means MADDY. Maddie means pagal. Trump becomes pagal. But don't worry, no, we are not a neighbor of Trump, so we cannot give any further comment. We are just a student. Okay, we are just a student, so we should not take in very interesting in his personality. But yet what is happening, that is not good for the humanity. But come to the topic. So every federal government have a constitutional power, means their constitution should be written. The main theme is there, because अगर वो written नहीं है तो क्या होगा? स्टेट के साथ कभी भी इनजस्टिस हो सकता है. कौन कर सकता है बेटा? सेंटर, है ना, क्योंकि सेंटर और स्टेट में कौन पावरफुल होगा? ऑलवेज पावरफुल विल बी सेंटर. तो ये चीजें हम बताते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है. होपफुली आप समझ पा रहे होंगे. अब हम इन सबको वापस से मिटा देते हैं. अब हम आगे चीजें और पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या. आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट and the rights of govern and relation between two are adjusted. Means if there are a huge participants, for that reason, for the whole community, for the whole participants, you are bringing a book where few laws will be considered. Means there could be defensive law, there could be any law, because law will help us to grow, law will help us to move, law will help us to rule. So these are the things are there beta, because and rules has to be written. Anyone can access. If I talk about my fundamental right in India or any world, in India and any part of the world, if you are residing there, you can search, you can take access of Indian Constitution, because it is available, it is written form. Okay, if I talk about the Article 32,
any kind of book is there, na, any kind of publisher is there, the article too will be the same, because it is a common, it is a universal. So once the once the constitution is written, that becomes very easy to understand about the rules and regulation of the state. So basically आपको पता चल गया होगा the meaning of constitution. अगर आप जानना चाहो तो एक आध एग्जांपल और आप पढ़ सकते हो. Okay, constitution is a collection of norms by which the legal relation between government and its subject are determined and in accordance to which the power of state is exercised. आप समझ पा रहे होगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कलेक्शन है. कलेक्शन किस चीज का बेटा? रूल्स का है, क्योंकि उसमें जो भी चीजें लिखी गई हैं वो बहुत सोच समझ के पूरे स्टेट को रन करने के लिए, जितने भी स्टेट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है स्टेट के कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे बेटा, तो आपको पता होना चाहिए. पहला होगा पॉपुलेशन, या पहला सेकंड दूसरा वो आप सोच लीजिए. सेकंड विल बी बेटा टेरिटरी, थर्ड विल बी गवर्नमेंट एंड फोर्थ विल बी सोवरेनिटी. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, these all participants related with the states, they for that for managing them, it is needed to have a basic rule, and that rule in the form of written. So that is why we call our constitution is a written constitution. And in the world beta, if you talk about the world scenario na, we take an example of USA, because we have taken the written constitutional ideas from the USA's constitution, because यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड. और उसके बाद में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, वो अभी हम आगे चल के बात करते हैं. तो इसीलिए इस तरीके से आपको यहाँ पर बात को ध्यान रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड. अरे बाबू काम कर नहीं रहा पेन, चलो कर रहे. ओके 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 ओके, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. कंटेंट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये शायद उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी. अब क्वालिटी ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि ये भी सिलेबस में नहीं मेंशन है, पर आपको पढ़ना चाहिए ना. सिस्टमेटिकली रिटन होना चाहिए. ओके, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कब अच्छा होता है? जब वो सिस्टमेटिकली लिखा रहता है, एवरीथिंग. जैसे हमारे स्कूल में, हमारे सेंट मेरी स्कूल में, अगर हर चीज, जैसे जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था, ओके, जब सिस्टर मसीन ने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया, सॉरी सिस्टर संगीता ने, जो हमारी मैनेजर सिस्टर है, तो जब उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो वहां सब कुछ लिखा था. उन्होंने हमसे कहा कि सर टेक योर टाइम एंड रीड केयरफुली, देन यू आर सपोज टू साइन. मीन्स व्हाट बेटा, कि बिना पढ़े आप साइन मत करिए सर, बिकॉज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ओके, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े कुछ साइन करेंगे, बाद में कल को गलती करेंगे और हम आपको निकाल दिया. हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, बट मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं स्कूल के रूल के बिहाफ अगर खिलाफ जाऊंगा, तो टेक्निकली स्कूल को पूरी अथॉरिटी वो मुझे निकाल सकते हैं. तो अगर सिस्टमेटिकली चीजें लिखी नहीं होंगी तो वो मेरे लिए भी विजिबल नहीं होंगी. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी एडवर्टाइजमेंट होता है तो नीचे ना एकदम एकदम अनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं, इसलिए वो लोग छोटे छोटे रूल्स लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने तो लिखा था, आपने नहीं पढ़ा. मींस व्हाट, दे आर चीटिंग. ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ लीगल स्टडी, सो वी शुड नॉट गो इनटू डीप. इसीलिए कह रहा हूं कि हर चीज क्या होनी चाहिए? सिस्टमेटिक होनी चाहिए. सेकेंड है बेटा, डेवलप एंड चेंज इन अकॉर्डिंग विद द चेंजेस इन एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स. मतलब कि एनवायरमेंट में जो भी चीजें नीडेड है, सपोज करो कि लास्ट 50 ईयर्स से हमने कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया. किसमें भैया? तो हमने पॉपुलेशन के या हमारे सिटीजनशिप वैल्यूज में हमने कभी कोई अमेंडमेंट नहीं किया. रिसेंटली हमने क्या देखा था? सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा था. हमने क्या देखा था? एनआरसी देखा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप. अब इसको लेकर क्या है, हमारे पास कोई फिक्स्ड लॉ नहीं था, ओके, या हमारे पास कोई फिक्स्ड रूल नहीं है. तो रूल नहीं होने से क्या होगा? प्रॉब्लम होगा कि कोई भी, सपोज करो कि बांग्लादेश का कोई इंसान आएगा, बोलेगा कि हमको इंडिया में रहना है. अब चलो भैया इंडिया में कोई प्लेस रह लो. अब एक इंसान के रहने से कुछ असर पड़ता नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो धीरे धीरे 1 करोड़ 10 करोड़ है ना, 50 करोड़ अगर लोग आते जाएंगे तो ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन तो बढ़ते जाएगा. देन सेकेंड प्रॉब्लम विल कम्स बिफोर अस, दैट इज अ क्राइसिस ऑफ फूड. ऑलरेडी वी हैव अनदर प्रॉब्लम. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रिक्ट प्रोविजन के लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत नीडेड होते हैं. आज के 50 साल पहले बेटा हमारे पास में रिफ्यूजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था. व्हेन आई टॉक अबाउट द रिफ्यूजी मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द इल्लीगल माइग्रेंट्स. ओके, illegal migrants means what beta? Those people who are coming continuously in India, they are residing here over here, but they don't have a basic documents, mean they do not belong to the Indian citizenship. So who they are? Definitely they are outsider. If they are outsider, then who the hell they are? Why they are? Which power they have to be live here?
in the form of humanitarian approach, we can give them the food, we can give them the shelter, or we can give the fund. But if by providing our house to stay them themselves, then it becomes problematic for us also, na? So being a state, sometimes we have to stick also. In being a state, we have to liberal also in the terms of humanitarian approach. So इसीलिए हमें जो है कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इतना रिजिड, इतना फ्लेक्सिबल भी बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, और गवर्नमेंट को टाइमली क्या करना पड़ता है, बहुत सारे अमेंडमेंट भी करने पड़ते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी एंड नीड ऑफ एनवायरमेंट। सी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ऑल्दो इट इज नॉट अ सिलेबस। सो जब मैं सिलेबस नहीं है, इसका मतलब ये आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लेना। एक सेकेंड, हाँ, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आके देखते हैं बेटा काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि आपको मैं अंडरस्टैंडिंग देता हूं, बाकी रीडिंग आपका पार्ट है। सबसे पहली चीज क्या होता है बेटा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, अब एक बात बताओ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो चीज लिखी रहती है। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व गार्नर्स इज अ कंसाइसली प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड बाय डेलिबरेट एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कन्वेंशन। दो बातें, कोई भी चीज बेटा सबसे पहले या तो असेंबली से फॉर्म होती है या तो कन्वेंशन से। देन यू कैन आस्क मी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स ऑल्सो दैट देयर इज अ ग्रुप, एनी काइंड ऑफ ग्रुप, दैट इज नेम ऑफ ग्रुप ए, they have a lot of people, they sit together, they make some joint sessions, and then they form any rule, okay, and if the rule is going to written in a book, that is called the constitution. Constitution means the rule book. So this is on the convention also. If I talk about a assembly, assembly means what beta? A person means a group of people in the form of parliament, they have elected by the people, and they are going to create a good constitution, not good, not bad, just a constitution for the country, which is known as constituent assembly. So what I am trying to say, if you getting the point, means कि अगर कोई assembly, एक सेकेंड, थोड़ा ज्यादा ही ना ठीक हो जा रहा था, अभी ठीक है, वेरी गुड। सी, जैसे कि कोई भी असेंबली अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर प्लान कन्वेंशन। तो मतलब क्या हुआ कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा कि जो प्रॉपरली रिटन है, जो फॉर्मुलेटेड है और जो एडॉप्टेड भी है, मतलब कि बहुत प्लान के साथ में उसको डेवलप किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूएसए, द जर्मनी, द जापान, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, and it was started from 1946 till 1950, because 26th of January 1950 we take this day as a Republic Day, because in that day our constitution was enacted. It means started, you can say the applied, the whole articles were applied. So the things are there. If you talk about the USA constitution means drafted. drafting का मतलब क्या होता है कि जब हम चीजों को लिखते हैं, when we have written there, okay, that is known as a drafting. आपको पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ओके। अब अगर आप भी अभी भी अगर आप चुपचाप सो के वीडियो देख रहे हैं और नालायकी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो मेरा काम है बीइंग टीचर, वो मैं अपना काम कर रहा हूं, ओके। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। तो यूएसए का ये कन्वेंशन आपको पढ़ना होता है, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787, that was drafted, because at that first time the USA constitution was drafted in 1787 in the Philadelphia Convention. तो convention का मतलब भी you can see, just understanding it is a summit also, okay। ये भी क्या है बेटा, ये summit है। summit का मतलब होता है सम्मेलन। In the contemporary times, very large number of states have their representative self-made constitution. Only few states are example like UK, Canada, New Zealand, सैन मारिनो, सऊदी अरेबिया हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। देखिए, स्टेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि स्टेट का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बोथ रिटन और अनरिटन, बट डज नॉट मीन इफ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड इन स्टेट, स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। There is a good example beta which is known as United Kingdom, that is UK. You cannot take lightly to the UK because UK have a
unwritten constitution, but their parliament is the supreme parliament in the world. You cannot imagine how much power it has, because their nature of the society, even the nature of state is also unitary form of government. We have studied yesterday. And right now the constitution, the written unwritten form is there, but still they have a good capacity, still they have a good command over the state, over the country, बट उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सो इसलिए मतलब हम ये बताना चाहते थे कि जो चीज लिखी रहती है, प्रॉपरली लिखी रहती है, और रिटन होने से अपना फायदा भी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. अब आगे देखते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. अनरिटन क्या होता है बेटा? जो लिखा नहीं रहता, राइट, बट वो एग्जिस्ट करता है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वन विच इज नीदर ड्राफ्टेड नॉर इनेक्टेड. ना ड्राफ्टेड और इनेक्टेड का मतलब होता है कि उसका कोई स्पेसिफाइड हमको रूल नहीं दिखता, बट दैट लॉ एग्जिस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसको किसी असेंबली ने फ्रेम नहीं किया. इट इज ऑल्सो नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अनदर डॉक्यूमेंट. वो बुक नहीं होता, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो हमारा बिलीफ भी हो सकता है, वो हमारे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, वो हमारा कोई कन्वेंशन का समिट हो सकता है, या हमारे कोई ओल्डर ऑर्डर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट हैज टू बी इन अ फॉर्म. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, दैट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी बुक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा. देयर इज अ नो बुक, ऐसा भी नहीं है. हो सकता है कि छोटी छोटी कोई बुक हो सकता है कि कोई नॉर्मल लेटर का पेपर हो, या किसी का ऑर्डर हो, या कोई छोटी बुक हो, अलग अलग तरीके के नाम हो, अलग अलग कोई कस्टम हो, कोई बिलीफ हो, कुछ भी हो सकता है. तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रूल, जिससे से हमारी कंट्री गवर्न होती है, बट डज नॉट मीन दैट देयर हैज टू बी अ रिटन फॉर्म. इसीलिए वी आर रीडिंग बिकॉज इट एग्जिस्ट ऑल्सो. इवन देयर इज अ गुड एग्जाम्पल एज ए टोटल ईयर यूनाइटेड किंगडम. यू मस्ट बी अवेयर. ओके, आगे देखते हैं, है ना. However, अब ये सब आपको पढ़ना है ना, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा. Produced in a form of book and shown the student of politics, the institution of the government on their existence and working or to historical charter rules, precedents and experiences also. These are comes under the unwritten constitution. अगर कोई हिस्टोरिकल चार्टर है, सपोज कि 100 साल पहले हमारी कंट्री ने कोई चार्टर कोई अप्लाई किया था, चार्टर क्रिएट किया था. चार्टर का मतलब भी होता है रूल होता है. ओके, रूल बुक होता है. रूल्स का मतलब ही रूल बुक होता है. रूल का मतलब यूं समझ लीजिए ना कि रूल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको यू हैव टू रन अकॉर्डिंगली दैट कस्टम, दैट बेसिक रूल. ओके, सेकेंड, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिक्स करते हैं कि अगर कोई चीज अगर लिखी हुई नहीं है, if any law that is not written, then we are not supposed to follow, because anyone can become bring changes in that law. If you have a more power, you can bring more changes. So it will be very tough to understand if it is not in the form of written. But ठीक है, अपना अपना सबका critics है. We are a student of political science, so we cannot say what is good, what is bad. What the things is written, beta, it is our duty to read and learn. Okay, आप इसको पढ़ लेना, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है. The British government has been unwritten constitution. It has been never codified by the British Parliament. No constituent assembly has formally drafted and passed it. It is not available in the form of single written document also. It lives in several charter stages and judicial decision. It function on the basis of large number of convention, and here it is an unwritten constitution. बिल्कुल सही है. इसको इम्पोर्टेंट पढ़ना. इसको पढ़ने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है. आई बात समझ में? ठीक है. अब आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको पढ़ लेना होगा. बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन. जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है मतलब वो रिटन है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ वो क्या है? अनरिटन है. असेंबली काउंसिल कुछ भी ऐसा हम अगर समझते हैं कि भाई हमने कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया, हमने कोई समिट माना, इस तरीके की चीजें हम एक्सेप्ट तो करते हैं, बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन अ डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या कहेंगे? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ये सब आपको पढ़ना होगा, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस, बट यू आर सपोज टू रीड. ओके, सी डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन इज करेंटली, ये भी आप स्किप कर सकते हैं, बट इफ यू हैव अ मोर टाइम बेटा यू शुड रीड ना. नाउ वी हैव फोकस ऑन द flexible constitution. What is the flexibility?
देखो, आपको पता होगा इसका मतलब तो जानते होंगे कि फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा इजीली अमेंडमेंट हो जाए, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन बी इजीली अमेंडेड, मतलब वो क्या हो पाए, सबसे ज्यादा जल्दी से अमेंड हो पाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों भाई, प्रेजेंट ब्रिटेन प्रेजेंट अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्रिटेन पार्लियामेंट इज अ सोवरेन पार्लियामेंट। आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम पावरफुल है। क्यों बेटा, क्योंकि वो एक सोवरेन पावर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के ऊपर देयर इज नो एनी बॉडी अबव द ब्रिटेन पार्लियामेंट। दैट इज वाई जो भी फैक्टर डिसाइड करती है ब्रिटेन के पार्लियामेंट, वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है। बट ब्रिटेन की पार्लियामेंट अगर कोई सिंपल लॉ आपका पास करती है, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनरी लॉ। अगर वो पास होता है तो उसी की वजह से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। लिखा हुआ यहां पर कि देखो यहां लिखा हुआ है दिस कैन डू बाय द सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि कोई भी अगर चेंजेस करना होगा तो आप सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस कर सकते हैं। लॉस एमिंग टू मेक changes in the constitutional laws or ordinary law are passed through the same legislative procedure, simple majority, constitutional and statutory laws, and at par. This British constitution is flexible constitution. Similarly, a constitution can be described as a flexible procedure of amending is simple and changes in the constitution can be easily made. आपको लास्ट वाली लाइन हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आप उसे ही आप कोई पूछेगा कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों तरीके की चीजें हैं, ना हम ज्यादा रिजिड हैं और ना हम ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। वी हैव बोथ सिचुएशन बिकॉज वी कैन कॉल एनी कॉन्स्टिट्यूशन it is a flexible constitution if we find the simple procedure, means procedure of amendment. If we find simple procedure, then we can say the things are the things are simple and it is applicable in the constitution, can be easily made. So the things are there beta, it is written in the flexible constitution. You are supposed to read the merit also. मैं आपको सिर्फ एक एक बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए पनिशमेंट है, आप लोग नहीं आए थे तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि अगर आप एब्सेंट थे तो हमारी ड्यूटी होती है कि मैं आपके लिए कुछ चीजें करूं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए चीजें वहां पर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा उसको ध्यान रखेंगे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि टीचर रोज रोज ऐसे करने वाले हैं। आप लोग सच में मार खाने का काम कर रहे हैं। वैसे भी हमने कंप्लेन कर दिया है सिस्टर को, वो डेफिनेटली कुछ एक्शन लेंगी। अब देखते हैं फर्स्ट, हाँ ये सिलेबस है बेटा, मेरिट और डिमेरिट आपको पढ़नी है। तो देखो पहला मेरिट क्या है, A major merit of flexible constitution is to stay its ability to change easily in the accordance with the changes in the social and political environment। मतलब क्या कि अगर मेरी सोसाइटी में नीड है, देखो सोसाइटी को ही रूल करने के लिए हमें लॉ की नीड रहती है ना। अगर सोसाइटी में हमें कोई नई चेंजेस लाने हैं, अगर हमारा पॉलिटिकल डायनामिक्स अगर हमारा कोई चेंज हो रहा है, हमें कभी कोई सिटीजनशिप वैल्यू की बात करनी होगी, हमें कभी सॉवरेंटी की बात करनी है, हमें कभी पब्लिक लॉ की बात, इस तरीके का कोई लॉ अगर हमको लाना है, हमको अपने स्टेट को ज्यादा अच्छे से गवर्न करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स चाहिए, तो उसको अमेंडमेंट करने के लिए अगर हमारे पास में सबसे सिंपल टूल है, सबसे सिंपल मेजोरिटी है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि सबसे कम समय में आप चीजें कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको प्यास लगे और आपके पड़ोस में ग्लास में पानी रखा होगा तो क्या करेंगे आप आसानी से उसे उठा के पी लेंगे। मीन्स व्हाट बेटा, कि आपके लिए सबसे कम टाइम लगा, तो वो आपका मेरिट हुआ ना। सेकेंड इज इट इज वेरी हेल्पफुल इन मीटिंग इमरजेंसीज बिकॉज इट कैन बी इजिली अमेंडमेंट। कभी कोई इमरजेंसी आ गई कि भाई हमें जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करने होंगे, और अगर आपका प्रोसेस टफ होगा तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आइन बात समझ में। तो ये होता है एक चीज कि जो भी सोसाइटी की नीड है, अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ सोसाइटी इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यू कैन ब्रिंग चेंजेस and that will be very easily, okay, it becomes changes easily, that is known as the merits of flexible constitution। आई बात समझ में। थर्ड क्या है कि नेचर, डायनामिक नेचर है, लेस अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें पढ़ेंगे ना। फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन हैज बीन फ्री फ्रॉम वायलेंट रेवोल्यूशंस ऑल्सो बिकॉज द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कि जब कभी भी ब्रिटेन में इसलिए ज्यादातर चेंजेस नहीं आए। पूछो क्यों नहीं आए, क्योंकि ब्रिटेन को जब कभी ये फील हुआ कि मुझे अपनी सोसाइटी में चेंजेस करने होंगे,
उसने इंस्टेंटली अपने अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कभी सोसाइटी में कुछ खास तरीके का रेवोल्यूशन भी हमको नहीं देखने को मिला, है ना। तो इस तरीके से चीजें, बट इसकी डिमेरिट क्या होती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होगा तो इससे क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट इन पावर टू गिव अ डिजायर्ड ड्रेस एंड कंटेंट। सबसे बड़ी चीज क्या हो जाएगी कि इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, कि जब कभी आपका मन हुआ आपने चेंज कर दिया, जब कभी मन हुआ आपने चेंजेस वापस ले लिए। तो थिंग्स इज व्हाट बेटा, इफ यू बिकम इनस्टेबल मींस व्हाट, if you become unstable your ability will be reduced, okay, so your function will be hamper, so for that reason आपकी flexibility balanced होनी चाहिए। अगर आपका बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी है तो ही आप ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप डिमेरिट्स पढ़ेंगे। अब आते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मुझे अभी आपका और टाइम लेना होगा। देखिए 30 मिनट हो गए, 30 मिनट्स, और अभी मुझे जल्दी से खत्म करा के मुझे अमेंडमेंट प्रोसेस पढ़ाना होगा, तो उसको अभी हम पढ़ते हैं। डिमेरिट्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल, डिमेरिट आप पढ़ लेंगे। रिजिड क्या होता है बेटा, जो बहुत ज्यादा टफ हो, है ना। तो टफ कैसे हो सकता है भाई, टफ कैसे होगा अगर उसके अमेंडमेंट प्रोसेस सबसे टफ होंगे। फॉर एग्जांपल द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच कैन नॉट बी इजिली अमेंडेड, इट्स मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज डिफिकल्ट, फॉर अमेंडिंग इट द लेजिस्लेचर हैज टू पास अ प्रपोजल बाय स्पेसिफिक एंड लार्ज मेजोरिटी 2/3, 3/4 or an absolute majority of votes. For passing or amending an ordinary law, the legislature passes the measure by simple majority of the members present. The constitutional law is considered the fundamental or supreme law of the land. अब एक बात बताओ, तो इतनी सारी चीजें कर दी गई कि दुनिया का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतना ज्यादा टफ है कि उसको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और अगर आप सच में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने टफ हैं कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो बहुत ज्यादा रिजिड है बेटा, इसका मतलब क्या है कि पूरे कंट्री में उस बुक को सुप्रीम लॉ बुक का कंसिडरेशन हम देते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं, और उसका प्रोसेस इतना टफ होता है कि अभी तक उसमें बहुत कम चेंजेस हम ला पाए हैं। इसमें यूएसए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो यू शुड लर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज सुपीरियर टू ऑर्डिनरी लॉ। आपको पता होगा कि दो तरीके के लॉ हैं। एक लॉ होता है बेटा दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकेंड इज ऑर्डिनरी लॉ। अब देखो, आप सोचेंगे सर आपको इंग्लिश लिखने नहीं आती। हाँ नहीं आती लिखने, मान लो, ठीक है ना। अब क्या करें, अभी दिमाग में इतना तेजी से सब चलता है कि राइटिंग ही ठीक से नहीं बैठ पाती। मैं बता रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। इसके बाद में ऑर्डिनरी लॉ, ये दो चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है, जो अपने आप में एक बुक होता है, उसमें और कुछ नहीं ऐड करना, अपने आप में उसको सुप्रीम कोड कहते हैं, है ना, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है बेटा, जो पार्लियामेंट में दैट इज इनेक्टेड या फिर क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट डायरेक्टली रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कौन सा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। बट अगर मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताऊं, तो कौन सा लॉ है बेटा, दैट इज ऑर्डिनरी लॉ, क्योंकि वो क्रिएट हुआ है। मींस इफ द लॉ that is created by the secondary body of the law of the parliament or the government or the organs of the government, that will consider the ordinary law। तो कुल मिला के कि जो फंक्शन हमने बनाया वो सबसे सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन। उस केस में जब हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, है ना। अब इसको पढ़ना, मैं इसमें और ज्यादा क्या समझाऊं, आपको पूरा पढ़ना होगा। मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना बहुत अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टफ है, जिसका प्रोसेस बहुत टफ है, जो इजीली अमेंडमेंट नहीं हो सकता, जिसका प्रोसीजर बहुत टफ है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आते हैं मेरिट्स के बारे में। व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट इज बेटा सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। बड़ी चीज क्या होगी कि अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत स्टेबल है, उसको लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना है। पिछले 100 सालों से ज्यादा से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इजीली चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नीड नहीं है चेंजेस की,
और सोसाइटी अपना अच्छे से है। और अगर बार बार चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि दैट विल नॉट कम अंडर द इंस्टेबिलिटी, तो वो सब क्या रहेगा, स्टेबल बना रहेगा। सेकेंडली, इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है कंटिन्यूटी को। थर्डली, इट कैन नॉट बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ पार्टी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ द स्टेट एट द पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या होता है कि जो एक्सरसाइजिंग पावर होती है वो क्या होता है, दूसरे के हाथ पे नहीं आता है ना, आप सुपीरियर नहीं बन पाते हैं, सब कॉमन रहते हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिफ्थ एंड फाइनली, द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडल फॉर द फेडरेशन। अभी मैंने भी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब कभी मल्टीपल स्टेट की बात होगी या ग्रुप ऑफ स्टेट की बात होगी, वहां पे रिटन का होना बहुत जरूरी है, और खास करके रिटन का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर वो रिटन होगा तो रिटन रहने से क्या होता है बताओ, रिटन रहने से क्या होगा, चीजें बहुत क्लियर होंगे, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आते हैं डिमेरिट्स क्या हो सकता है, बताओ डिमेरिट क्या होगा, डिमेरिट क्या होता है बताओ, कि भाई अगर आप रिजिड हैं तो उसके डिमेरिट क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि इट फेल्स टू कीप पेस एंड फास्ट चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड नीड्स। भाई अभी मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड है, इफ यू आर टू रिजिड, दैट विल टेक टाइम टू अडॉप्ट द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। If it is necessarily to be changed, you are not supposed to change, because beta you cannot change because your nature is different, your nature is rigid, so it will take time to change. Secondly, because of its inability to change easily, it hinders the process of social and political development। मतलब क्या कि इस तरीके से वो सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर क्या करता है, उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक आती है, क्योंकि सिचुएशन क्या रहता है, इनएबिलिटी के केस में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा, इट हिंडर द प्रोसेस ऑफ सोशियो एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वहां पर रुकावट आती है, वहां पर ब्रेकर क्रिएट होता है। इट कैन बी सोर्स ऑफ हिंड्रेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल्सो, मतलब आपको ब्रेक थ्रू करता है, इमरजेंसी में आप टाइमली चेंज नहीं कर पाते। तो अब मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि आपको क्या जानना है, यू शुड नो अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, now must see beta, it is the syllabus, we are supposed to see what is the goodwill of good constitution and rigid constitution, because beta गुड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जो ना सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना सबसे ज्यादा रिजिड है, वो क्या होना चाहिए, बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। इनफैक्ट द गुड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव बोथ सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज एन एबिलिटी टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम। मतलब कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है, देयर इज अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज एक्सेप्टिंग द चेंजिंग फुलनेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, the things are there, it has to made capable to keeping pace with the changing times by depending upon the some non-federal formal method of amendment like convention, legislative, executive, judicial interpretation। तो कुल मिला के यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वही है, गुड कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो ना सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो ना सबसे ज्यादा रिजिड हो, मींस देयर हैज टू बी अ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, if it is in a balanced form of rigidity, it will be healthiest for the nature of state. If it is in a form of balanced flexibility, it will be very healthiest for the state of nature of the state. So these are the things we have to study. अभी तक हमने दो पार्ट कवर कर लिए, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं that is the amendment process of UK, USA and India, means which kind of body is there to amendment the the constitution of these different states। थोड़ा सा रुको, मैं पानी पी खाता हूँ ना, एक सेकेंड बस। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा पानी पीने चला गया था, ठीक है। कम बैक टू द टॉपिक, अभी हम जो देखेंगे बेटा दैट इज अमेंडमेंट प्रोसेस। ओके, यूके का जो अमेंडमेंट प्रोसेस है ये दिस इज यूके अमेंडमेंट प्रोसेस, वी आर अवेयर अबाउट द यूके। सबसे पहले एक तो वहाँ का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन सी। Second is their unitary form of government, Third is beta very flexibility, so they follow simple majority, okay, simple majority, no need to have a special majority, okay। So and such a we are aware about the flexible constitution of UK, it can be easily amended
पार्शली और होली बाय एंड जस्ट ऑर्डिनरी लॉ, मतलब कि या तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर दो या छोटा मोटा जो भी चीजें, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, वहां का सबसे सुप्रीम लॉ है। ओके, इट कैन बी accomplished by the passing of a simple law by both houses of British Parliament। वहां पर भी दो both houses हैं। सिंपल द ब्रिटिश अपर हाउस, द अपर हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हैज वेरी लिमिटेड रोल इन द लेजिस्लेटिव वर्क। द रियल लॉ मेकिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। तो मतलब हमने क्या समझा कि यूके का जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट की कितनी ब्रांचेस हैं, दो ब्रांचेस हैं, एज लाइक इंडिया। तो पहले ब्रांच को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। तो इन दोनों से अगर हमने 2/3 अगर सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मतलब कि जो लोग वहां पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, जो भी इनकी सीट्स हैं, उनमें से टोटल का जो जितने प्रेजेंट होंगे एट द डेट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द वोटिंग, उस डेट को 2/3 मेजोरिटी से हम क्या कर देंगे, वोटिंग प्रोसेस करा लेंगे। तो वो एक चीज यहां पर बताने की कोशिश हो रहा है, ठीक है ना। In the other word, the British Parliament can pass a law by simple majority or make any amendment in the Constitution। ठीक है ना, कि वो क्या करेगा, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से वो अपना अमेंडमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। However, in actual practice, the exercise is not so simple as it appears to be because of the being highly developed liberal democratic system in which strong and enlightened public opinion acts as the director and determiner of the lawmaking. The amendment of British Constitution is almost always very concise and quite difficult exercise also। मतलब कि चूंकि सबको पता है कि ब्रिटिश का पार्लियामेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, इसीलिए जब कभी अमेंडमेंट होते हैं तो हमेशा सबको सावधान रहना होता है, बहुत जागरूक और बहुत सावधान। द पीपल ऑफ आर क्वाइट कंजर्वेटिव and are in love with their history and tradition, and so much so at times every major amendment becomes possible only after getting a popular mandate। मतलब क्या होता है कि वहां पर पब्लिक ओपिनियन को क्या करते हैं हम लोग, हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो भी पब्लिक ओपिनियन होगा, सपोज कि अगर अमेंडमेंट कराना होगा तो एक बार पब्लिक ओपिनियन से भी चीजें पूछते हैं, क्योंकि वहां सिंपल मेजोरिटी है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को जो समझ में आएगा वो ऐसा कर देगा, ये बात ठीक है कि कर सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो पब्लिक ओपिनियन को। तो पब्लिक ओपिनियन को हमेशा कंसीडर करते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं लिखना। इसे कि आप 3 4 5 पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं, द आंसर विल बी फुलफिल। अब आते हैं जो सबसे टिपिकल आपको पढ़ना होगा, दैट इज यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा रिजिड है, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत टफ लगता है। आर्टिकल 5 में आपने नोटिस किया होगा, लेस डाउन द डिफिकल्ट मेथड ऑफ अमेंडमेंट। पहले तो ये समझिए कि यूएसए की जो कांग्रेस है, यूएसए का जो पार्लियामेंट है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कांग्रेस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कांग्रेस पार्टी है क्या, नहीं, ये कांग्रेस पार्लियामेंट है, जिसके 2 ब्रांचेस है बेटा, मतलब 2 हाउसेस होंगे। पहले हाउस को क्या कहते हैं हम लोग, जिसको अपर हाउस कहते हैं, दैट इज सीनेट। क्या कहते हैं, सीनेट। सीनेट के कितने मेंबर हैं, देयर आर 100 मेंबर। सेकेंड क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन 2 मेंबर से बनते हैं। अच्छा, 100 सीट क्यों है सीनेट की, क्योंकि 50 स्टेट है, कहां पे, यूएसए में। तो एक स्टेट के पास कितने सीनेट हैं, देयर आर 2 सीनेट्स ऑफ इट हैज ईच स्टेट हैज अ 2 सीनेट आल्सो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्रपोजल स्टेट। ये सब आप पढ़ना ना, आपके पढ़ने की चीज में और कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, लिखा 2/3 3/4 अभी देखते हैं। पहला है प्रपोजल स्टेट। कोई भी चीज जब अमेंडमेंट होती है तो उसका सबसे पहले प्रपोजल आता है। वो प्रपोजल क्या होगा, तो उसके 2 स्टेटस हैं, 2 तरीके हैं प्रपोजल के। सबसे पहला क्या है कि जो भी 2/3 मेजोरिटी है, मैंने कहा 2 हाउसेस हैं, ईच हाउस सेट बाय 2/3, ईच हाउस से 2/3 हमको प्रपोजल चाहिए, है ना। हमको क्या चाहिए, प्रपोजल चाहिए। तो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि चलो वी कैन स्टार्ट द amendment process within a constitution. Second is amendment proposal can be adopted by a constitutional convention which may be summoned by the US Congress by 2/3 of the state legislatures may take such a request also। मतलब कि जितने भी स्टेट हैं, अगर उन स्टेट ने 2/3 मेजोरिटी से एक प्रपोजल यूएस कांग्रेस को भेजा है, मतलब कि सेंट्रल पार्लियामेंट को अगर दिया है, तो वहां से भी हम वी कैन स्टार्ट द procedure of amendment of the Indian US Constitution. So the first state is a proposal state. Second is beta that is ratification. अब ratification क्या होता है,
amendment proposal which clears the first stage goes for the ratification. There are again two alternative methods. Ratification का मतलब होता है जांच करना, to ratify कि गलत है कि सही है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं huge discussion and voting process. ये सब कुछ हम that all comes under the ratification. So second process, first is proposal, second is ratification. एक सेकेंड ना, okay. In the second stage beta, there are again two alternative method, that is an amendment proposal which clears the first stage goes in for ratification. There are again two alternative methods of ratification. It can be done either by legislatures of 3/4 of the state legislature or by special convention in 3/4 of the state of the US Federation. दो बातें समझिए. जैसे एक स्पेशल कन्वेंशन क्या होता है, स्पेशल मीटिंग्स होती है कि बहुत सारे स्टेट्स के साथ आपने मीटिंग कर ली, तो वहां से उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल कन्वेंशन कहते हैं. दूसरी चीज जो होती है बेटा वो होता है 3/4 स्टेट. तो कहीं ना कहीं अगर आपने सभी के सभी रेटिफाई कर दिया, फॉर सपोज कि आपने प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के बाद में यूएस कांग्रेस ने उसको पास किया, उसको करने के बाद में यूएस कांग्रेस ने वापस से स्टेट को भेज दिया टू रेटिफाई. अगर स्टेट ने बाय 3/4 अगर उसको रेटिफाई कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा. लेकिन जैसे इंडिया में क्या होता है बेटा, वंस द ड्राफ्ट, एक सेकेंड ना, वंस द ड्राफ्ट दैट कम्स कमिटी, देन हाउस discussion, voting, then signature of president of India, then it comes before the law. मतलब it turns into the law. ऐसा नहीं होता, ये वाला प्रोसेस नहीं होता, वहां पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की नीड नहीं होती है. ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना. आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड. सो सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस में रेटिफिकेशन में कि स्टेट उसको रेटिफाई करते हैं कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं. क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यूएस में बेटा, यूएस में जो भी चीज होने वाली है, जो भी तरीके की चीजें होंगी, चाहे वो यूएस का आपका कोई अपॉइंटमेंट ही क्यों ना हो, दैट इज अपॉइंटमेंट दैट इज डन बाय द यूएस प्रेसिडेंट, दैट हैज टू बी रेटिफाइड. मैंने क्या बोला, रेटिफाई बाय द सीनेट. क्यों, क्योंकि सीनेट क्या है बेटा, अपर हाउस है. सीनेट इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ स्टेट्स. और वहां पर क्यों स्टेट को हम बड़ा मानते हैं, बिकॉज दे हैव अ फेडरल गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी. The US Congress decide as to which mode of ratifications to be followed is given. ये US Congress decide करते हैं कि कौन सा ratification का mode होगा. Some clarification you should know बेटा, that is 2/3 majority of both houses means passing the amendment proposed by 2/3 majority of members present in each house of the Congress acting individual. It does not mean 2/3 majority of the total members of two houses in the joint session. मतलब कि दोनों को क्या करना होगा, इंडिविजुअली आपको इंडिविजुअली पास करना होगा, ना कि जॉइंट सेशन में. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अमेंडमेंट प्रपोजल विच सक्सेसफुली पासेस द 2 स्टेजेस डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंशियल साइन, है ना. जब तरीके के 2 स्टेजेस हो जाते हैं तो उनको क्या करना होगा, आपको रिक्वायर्ड नहीं रहता है, सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है ना. ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा ना, 2 तरीके की चीजें. अमेंडमेंट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. ये तो पता ही होगा कि जुडिशियल रिव्यू में बेटा अगर कोई भी तरीके की गलत चीजें अमेंडमेंट हो गई हैं तो उसको हम वापस से सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकता है ना. 2 चीजें, सबसे पहला 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर टू अमेंडमेंट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन से बैरियर है, फर्स्ट इज प्रोविजन रिगार्डिंग द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द सीनेट कैन नॉट बी अमेंडमेंट. तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सीनेट क्या होता है, अमेंडमेंट नहीं कर सकते ना, मतलब सीनेट को हम नहीं चेंज कर सकते. सेकेंडली द प्रोविजन दैट इज बाउंड्री ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी चेंज विदाउट देयर कंसेंट. अगर उनका बाउंड्री चेंज करना होगा तो उनकी अमेंडमेंट आपको उनका कंसेंट लेना पड़ता है. दिस 2 प्रोविजन कैन नॉट बी
अमेंडमेंट, मतलब ये जो चीजें होंगी उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। मतलब कोई रूल है, जिस रूल से कोई रूल चलता है उस रूल को आप नहीं हटा सकते। तो इस तरीके की चीजें बचा के रखनी पड़ती है। आप लिमिटेशन आप पढ़ सकते हो, हालांकि लिखा नहीं है सिलेबस में कि वो सबसे ज्यादा स्लो है, सबसे ज्यादा रिजिड है, नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, है ना। कई बार तो आप चाहो तो काट भी दो या फिर चाहो तो पढ़ भी लेना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल ऑल्सो। ये चीजें हैं क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसानी से भी नहीं होता और इतना टफ भी नहीं है कि इसको हम ना कर सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 का मतलब 20 पार्ट में आर्टिकल 368 लिखा हुआ है। उसके 2-3 तरीके हैं, उसको मैं बहुत आपको तेजी से बता देता हूँ। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी खास नहीं लिखा है, बस इतना लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी कौन कौन से हाउस में लगेगी, ये सब चीजें लिखा हुआ है ना। स्पेसिफाइड एंड समवॉट रिजिड मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज most of the provision can be amended by the parliament by passing an amending act by a majority of total membership and 2/3 majority of the member present and voting in each house। दो तरीके की चीजें बेटा। सपोज करो कि ये लोकसभा है, मैं आपको यहां से समझाता हूं, ये लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 550 मेंबर हैं। उन 550 मेंबर में, लोकसभा के उन 550 मेंबर में दो चीज होगी। एक तो 350 मेंबर आपके प्रेजेंट हैं और टोटल स्ट्रेंथ कितनी? 550। सपोज करो कि मुझे कोई अमेंडमेंट करना होगा, और उसको कैसे करना होगा? सिंपल मेजोरिटी से, मतलब ऑर्डिनरी लॉ से मुझे अमेंडमेंट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं क्या करने वाला हूं बताओ? ऑर्डिनरी लॉ से मैं करूंगा तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका मैं 2/3 ले लूंगा, तो 2/3 ऑफ 350। एक तो ये तरीका हुआ। सेकंड क्या हुआ बेटा कि मुझे टोटल का चाहिए, 2/3 चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आपका स्पेशल मेजोरिटी बोल देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ स्पेशल मेजोरिटी का, ये आपका 1 हुआ पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? अगर मैं 50+ स्टेट, मतलब कि सपोज कि 20 स्टेट 29 स्टेट्स आ रहे हैं ना, एक सेकेंड होल्ड करना ना, हाँ 28 29 नहीं 29 28 स्टेट्स हैं अभी, तो 20 स्टेट्स का 50% क्या होगा बेटा? 14 स्टेट। तो 14 स्टेट में हमको क्या करना पड़ता है? 14 स्टेट में हमको आपके क्या बोलते हैं, उनको हमको बिल देना पड़ेगा, मतलब उनके पास भी आपका ड्राफ्टिंग जाएगी, वो लोग भी क्या करते हैं? पास करते हैं, मतलब वो अपना रेजोल्यूशन देते हैं। तो उस तरीके की यहाँ पर चीजें हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं जो मेन चीज हमको ध्यान देना है, जो सिलेबस में हमको पढ़ना होगा ध्यान से, वो ये है। इसके 3 तरीके हैं बेटा। फर्स्ट इज 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाउस के कितने, हमारे कितने हाउस है बेटा? पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इनके सीट 550 मैक्सिमम की मैं बात बता रहा हूं, ये 250 है। इनका आपका 2/3 चाहिए होगा, दोनों हाउसेस का, अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय द एटलीस्ट हाफ ऑफ द सेवरल लेजिस्लेचर। जैसे कि ये जो लेजिस्लेचर है उनको भेजने के लिए आपको बहुत स्पेशल चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई रिजर्वेशन में कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टेट से कंसेंट लेने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट की किसी बाउंड्री में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की किसी आपकी लीगल लॉज में, अगर आपका गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में है ना, अगर मतलब स्टेट से रिलेटेड या कोई फंडामेंटल बेसिक डिटेल से रिलेटेड, या फिर आपने 73rd में आपने पढ़ा होगा 1970 आपका जो केशवानंद भारती का जो केस था, जिसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फिलोसफी ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में जब बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली हैं, है ना। सच परमानेंट वर्ड अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब वो हमेशा बनी रहेगी, या उनको वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, वो है ना। क्या है वो? दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, वो हमेशा मेंटेन रहेगा, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं आप? अमेंड नहीं कर सकते। अगर उनमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए होगा तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज यहां पर देखनी होगी। तो फर्स्ट मेथड हमें आपको पता चल गया, विच इज नोन एज फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड होता है, ये उसको स्पेशल प्रोसीजर कहते हैं।
Article 368 lays down that amendment of the constitution may initiated only by the introduction of bill for the purpose of either house parliament, and when the bill is passed by each house, the majority of total membership of that house, and by the majority of not less than the 2/3 of the member of that house present and voting, it shall be presented to the president who will shall give the assent to the bill. मतलब आपने बताया दो तरीके, तो आपके टोटल का हमको निकालना पड़ेगा, टोटल का 2/3 आपको चाहिए होता है, तो ये आपको नोटिस करना, ध्यान रखना होगा। सेकंड क्या बेटा कि जब आपके पास में 2/3 तो आपने ले लिया दोनों हाउस का, एंड देन it has to be sent to the whole state. Suppose if we have 28 states, that has to be passed by the 14, minimum 14 means I'm talking about more than 50% has to be there. Few things that is written here, you can see, if the constitution amendment is related with the these articles like article 54, article 73, article 162, article 241, then it comes before the special majority, okay, and then it has to be assigned by the okay. Second is, you can see over here also na, that is a this following provision of the constitution can be amended by this flexible method also. The flexible method, it can be third process, okay, amendment by the simple majority of votes in the both houses of the parliament. How many houses? 2 houses, Lok Sabha, Rajya Sabha. If it is going to pass by both houses by simple majority, that is 2/3, it has to be, it automatically it will be passed. So you are supposed to see beta, there are 3 kind of the amendment process. Each process is very important, you are supposed to see. So this video is totally dedicated those people who were absent today, but does not mean that I'm going to repeatedly making for the videos, understand? So please pay attention. We have this month only, and as much as possible we can do something better. We will try, we will definitely do, okay. Have a good day. We will make another videos on the third unit, that is universal adult franchise means what, the voting process we are going to see. Next video we will definitely see that. अब तो और कुछ इसमें बचा नहीं है बताने लायक, देखते हैं इसको, पढ़ लेना कल बाकी मिलते हैं सुबह, है ना। अच्छे से बुक को रीड करना सब लोग, ये बात ध्यान रखना, अगर इफ यू नॉट रीडिंग बेटा दैट इट विल वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर।